Children, today I will discuss the new chapter, Force and Laws of Motion. Firstly, we will discuss about the force. Force. What is force? A push or pull on an object is called force. Clear? Force is push or pull. फोर्स से हम कोई ऑब्जेक्ट को भेज सकते हैं, पुश कर सकते हैं और पुल कर सकते हैं, मतलब शिफ्ट करना और उसको अपनी तरफ खींचना. दैट मीन्स जैसे कोई टेबल है हमारे पास, ठीक है. नाउ दिस ऑब्जेक्ट इज़ केप्ट इन माई टेबल. ओके चिल्ड्रन, यू लुक, this object is kept in my table and I will see what is push and pull. This is push, उधर की तरफ धक्का दिया and अपनी तरफ खींचा, that is called pull. This is called the force. Is that clear? Push and pull, this is called the force. Now this is table, right? Table, this is movement, this movement is called push, like that movement is called push, and this movement is called pull. Is that clear? And a rubber ball becomes oblong applying force. A rubber ball oblong on applying force. After we reacting that force, we will change the shape, direction and so on. Okay, the stationary object can move and the force can change the direction of the object and the force can shape of the object. अगर किसी ऑब्जेक्ट में हम फोर्स लगाते हैं चिल्ड्रन, तो वो ऑब्जेक्ट का या तो शेप चेंज होगा या डायरेक्शन चेंज होगा या उसकी जो स्टेशनरी है तो वो मूवमेंट करने लगेगा. इज़ दैट क्लियर? लुक लाइक दैट पेन, दिस इज़ पेन, ठीक है. आई अप्लाइंग दैट फोर्स एंड फोर्स से क्या होगा, देखिए मूवमेंट हो रही है, राइट? लुक, दिस इज़ द मूवमेंट ऑफ फोर्स. Clear children? I hope this is clear to all of you. Okay, now start the chapter. This is force and laws of motion, chapter 2 of physics का ये chapter 2 है. Is that clear children? इसमें हम आगे कंटिन्यू करेंगे, तो पहले हम लोग लिख देते हैं, साइड में लिखेंगे. फर्स्ट हेडिंग इज़, you write first heading, what is force. Okay, now write first heading, what is force. Write force. अभी हमने जैसे कि बताया था कि फोर्स की डेफिनेशन आप क्या लिखेंगे, a push or pull on a body is called force. पुश और पुल, a push or pull on a body, clear children, on a body is called force. ठीक, is called force. Now what are the examples of this force? One more definition of this force is also we will write, that is लिख सकते हैं इसमें, that is करके इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं हम लोग. that is it, कौन फोर्स की बात हो रही, it is an external factor that changes the state of rest or motion of an object or changes its
shape, changes its shape, or try to change it. Clear? This is the force. Force has both magnitude and direction. So that means force is a vector quantity. Force has both magnitude, याद होगा आप लोगों को वेक्टर और स्केलर क्वांटिटी के बारे में बहुत एक्सप्लेन किया था इसको। मैग्नीट्यूड भी होता है फोर्स पे, क्योंकि जब फोर्स हम लगा रहे हैं तो हमें ये बताना ज़रूरी है कि हम किधर की डायरेक्शन लगा रहे हैं। फोर्स एंड डायरेक्शन, सो इट इज़ अ वेक्टर quantity. So it is a vector quantity. Its SI unit is kilogram into meter second की power -2. Is that clear? और न्यूटन इसकी यूनिट है। एंड CGS के फॉर्म में क्या होगी देखिए, CGS यूनिट भी बताएंगे इसकी क्या होती है, डाइन, DYNE, डाइन। इज दैट क्लियर चिल्ड्रेन? द CGS यूनिट इज डाइन। लुक, देखा सभी को? तो ये हम लोगों ने इसके बारे में बताया। अब जब फोर्स हमने इसके बारे में थोड़ा बहुत बताया है तो अब इसके एग्जाम्पल भी हम बता देते हैं। ठीक है, इसके एग्जाम्पल्स सीखेंगे। एवरीडे लाइफ वी विल यूजिंग दैट एग्जाम्पल्स लाइक पुशिंग, पुलिंग, लिफ्टिंग, स्ट्रेचिंग, ट्विस्टिंग एंड प्रेसिंग। दे आर द एग्जाम्पल्स ऑफ used in the they are the examples are used to in a force. Is that clear? They all are the examples of using a force. Now the next heading is for example. Please write the next headings for example. एक तो एग्जाम्पल हम लोग बता देते हैं इसके। जितना पढ़ा है हम लोगों ने तो एक एग्जाम्पल बताने में हमारा कुछ नहीं जाता, हम एग्जाम्पल बता सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल में हम लिख सकते हैं कि अ रबर बॉल मेक्स अ ब्लॉन्ग ऑन अप्लाइंग फोर्स। लिख सकते हैं, राइट? लिख लेते, चलिए देखिए, या बता सकते हैं अ टेबल लाइन। फर्स्ट एग्जाम्पल लिखिए पहले, अ टेबल लाइन ऑन द फ्लोर remains, अगर किसी फ्लोर में रखी हुई है, remains in a state of rest till it is not displaced without applying force. We did not change its position. हम लोग इसकी पोजीशन को चेंज नहीं कर सकते। अगर कोई भी टेबल फ्लोर में है, रिमेनिंग इन एट स्टेट ऑफ रेस्ट टिल इट इज़ नॉट डिस्प्लेस्ड फ्रॉम इट्स पोजीशन विदाउट अप्लाइंग अ फोर्स। ठीक है, विदाउट अप्लाइंग अ फोर्स। द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज a car standing along the roadsides come in motion only when applying the muscular effort from its back. A football player can kick the football around its motion when it changes the speed by again kicking it. Clear? और एक और एग्जाम्पल में हम लिख सकते हैं when the ends of string are straight the length is elongates. अगर हमें किसी की लेंथ को इंक्रीज़ करना है, when the ends of a string, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, कुछ भी बता सकते हैं, are stretched its length
its length elongates. क्लियर? तो ये सारी चीज़ें हैं, इसके एग्जाम्पल्स के फॉर्म में आप इसको लिख सकते हैं. इज़ दैट क्लियर? नेक्स्ट हेडिंग इज इफ़ेक्ट्स ऑफ फोर्स. क्या क्या इफ़ेक्ट्स, इसमें और भी एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं. फुटबॉल का भी लिख सकते हैं, और कोई हमने फोर्स लगाया, शेप ऑफ ऑब्जेक्ट, रबर की बॉल है उसको हमने शेप ऑफ ऑब्जेक्ट का चेंज कर दिया है, और रबर बॉल बिकम्स अबलॉन्ग ऑन अप्लाइंग द फोर्स. ठीक है, उसका भी एग्जाम्पल ले सकते हैं. नाउ द नेक्स्ट हेडिंग इज इफ़ेक्ट्स ऑफ फोर्स. नेक्स्ट साइड हेडिंग क्लास, इफ़ेक्ट्स ऑफ फोर्स. इफ़ेक्ट्स ऑफ फोर्स में अ फोर्स कैन नॉट बी सीन. फोर्स को हम लोग देख नहीं सकते हैं. अ फोर्स कैन नॉट बी सीन. ठीक है, अ फोर्स कैन बी जज्ड. हम सिर्फ उसको जज कर सकते हैं कि बहुत तेज़ी से तुमने फोर्स लगा के हमको मारा था. बोलते हैं ना अपने फ्रेंड से, अपनी बहनों से बोलते हैं, अपने भाइयों से बोलते हैं, मम्मी इसने मुझे कस के मारा है, मुझे बहुत तेज लग गई. तो कस के क्यों बोलते हैं आप लोग? कि आपने क्या किया, उसमें ज़ोर का फोर्स लगाया. तो वो फोर्स जज ओनली बाय द इफ़ेक्ट्स. क्या इफ़ेक्ट पड़ा उस फोर्स का जो नेक्स्ट अनदर बॉडी पे, विच इट कैन produce in various body around us. Produce in various body around us. The effects are as follows. A force can produce द. आप लोग कैसे कोई कस के धक्का दे दिया किसी को, ठीक है, कस धक्का गिर गया वो बच्चा, या कोई भाई बहन आपका गिर गया, तो आप कहते हैं ना, बाप रे कितने कस के तुमने मुझे मार दिया, गिरा दिया तुमने मुझे, इतना तेज़ फोर्स लगाया. तो वो जो आपके वर्ड से निकलता है फोर्स, वही आपका वही फोर्स है. इसकी फोर्स हम जानते हैं, कई बच्चे जानते हैं, जैसे कि रेसलिंग में, वेट लिफ्टर में देखा होगा आपने. वेट लिफ्टर में बच्चे लोग जो होते हैं, वेट लिफ्टर पुश एंड पुल दोनों ही करता है, वेट को उठाना, पुल करना. ठीक है, तो वेट लिफ्टर भी जो यूज़ करता है वो भी उसका फोर्स लगा के कर रहे हैं. ठीक है, ये भी एक तरह का फोर्स है. फोर्स के क्या मेन इफ़ेक्ट्स हैं चेक करते हैं. देखिए, फर्स्ट पॉइंट इसका है चिल्ड्रेन, अ फोर्स कैन मूव. हमेशा फोर्स मूव करता है. स्टेशनरी बॉडी. अ फोर्स कैन स्टॉप अ मूविंग बॉडी. फोर्स या तो स्टेशनरी बॉडी में मूव करेगा, यानी कि जो कांस्टेंट बॉडी है जिसमें फोर्स नहीं लग रहा, या तो वो मूव करेगा, कैन स्टॉप. हम लोग स्टॉप कर सकते हैं अ मूविंग बॉडी को. हमने जैसे कि बताया कि अगर आप साइकिल आपकी खड़ी हुई है, आप भी नहीं चला रहे हैं, जब तक आप उसको पुश एंड पुल नहीं करेंगे, आप उसको मूवमेंट नहीं करेंगे, उसमें फोर्स नहीं लगाएंगे, उसके पैडल में फोर्स नहीं लगाएंगे, वो साइकिल आगे नहीं बढ़ेगी. एग्जैक्टली. या आप यहाँ पे कोई भी सेकेंड पर्सन उस ऑब्जेक्ट में अगर फोर्स नहीं लगाएगा तो वो आगे नहीं बढ़ेगा. तो इसलिए हमको क्या है, फोर्स का ध्यान रखते हुए करना है. क्लियर? A force can stop a moving body. Is that clear? The next is third point. A force can change the speed. A force can change the speed of a moving body. A force can change the speed of a moving body. फोर्स से हम लोग उसकी स्पीड को चेंज कर सकते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, आप साइकिल मूव कर रहे हैं, आपने कभी बहुत तेज़ स्पीड से चलाया साइकिल को, कभी कभी आप धीरे भी चलाएंगे ना साइकिल, तो वही है, फोर्स कैन चेंज द स्पीड.
हम लोग इसकी स्पीड को चेंज भी कर सकते, कैन चेंज द स्पीड ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट, मूविंग बॉडी। अ फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन, हम लोग फोर्स लगा के हम लोग उसकी डायरेक्शन को भी चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप साइकिल से जा रही हैं, डायरेक्शन ऑफ अ मूविंग बॉडी, क्लियर। अ फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ ए मूविंग बॉडी, हम लोग उसकी डायरेक्शन को भी चेंज कर सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट ऑफ द मूविंग बॉडी की। इज़ दैट क्लियर? मतलब उसकी डायरेक्शन चेंज करना मतलब ये कि हमें अगर राइट जाना है, साइकिल से जा रहे हैं, हमें नॉर्थ जाना है नॉर्थ जाना है, ईस्ट जाना है, वो हमने अकॉर्डिंग सेट करते हैं। अब साइकिल से स्कूल आते हैं कुछ बच्चे, तो वो क्या सीधे 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 आते नहीं, उनकी डायरेक्शन चेंज करके आते हैं ना, लेफ़्ट राइट करके आते हैं। दैट इज़ द रीज़न। आप खुद भी मूवमेंट करते हैं क्या, स्टेशनरी तो नहीं करते ना आप लोग, मतलब स्टेशनरी के तो कॉन्स्टेंट मूवमेंट तो नहीं करते, सीधे 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 जा रहे हो, ठीक है। तो इसलिए हम लोग उसको यूनिफॉर्म मोशन नहीं, दैट इज़ द चेंजेस डायरेक्शन विद अ यूनिफॉर्म बॉडी। फोर्स लगा के ही चेंज कर सकते हैं उसकी डायरेक्शन को। अब चेयर हमको किस शिफ्ट करनी है, इधर से लेफ्ट से राइट ले आना है, तो हम उसको फोर्स लगा के उसकी डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। अ फोर्स कैन चेंज द शेप, अ फोर्स कैन चेंज द शेप भी कह सकते हैं, या और साइज, शेप और साइज ऑफ अ बॉडी। फोर्स से हम लोग शेप और साइज़ भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। हम चाहे तो इस पेन को तोड़ भी सकते हैं, तो तोड़ सकते हैं, तो फोर्स लगाने के बाद ही टूटेगा ना, लेकिन तोड़ नहीं रहे हैं, इसलिए कि वैसे हम बता रहे, क्योंकि ये गलत चीज़ है हम जो तोड़ने की बात कर रहे हैं, लेकिन एक हम एग्जाम्पल दे रहे हैं आपको, ठीक है। जैसे बॉल है, रबड़ की बॉल की बात करी हमने, तो उसका शेप और साइज़ हम चेंज करें। प्लास्टिक की बॉल है, अब बहुत हल्की जो प्लास्टिक है, उनकी आप कस के दबाइए अपने, तो जो उसके शेप और साइज़ चेंज हो जाते हैं। आप जैसे एग्जांपल ले सकते हैं अपने भाई बहन के, छोटे भाई बहन के जो टॉयज़ होते हैं उनको, अगर लेकिन कोई करेगा नहीं, बस हम एग्जाम्पल दे रहे हैं, ठीक है। आप लोग किसी की कोई भी किसी भी के कोई भी सामान को नुकसान नहीं पहुँचाएगा, ओनली जस्ट एग्जाम्पल, ओके चिल्ड्रेन। तो हम लोग उसके शेप और साइज़ को भी चेंज कर सकते हैं, इज़ दैट क्लियर? तो इससे हम लोगों को पता चलता है कि हम लोग कौन कौन से एग्जाम्पल्स इसके पढ़ सकते हैं। तो अगर किसी का भी कोई भी एग्जाम्पल पूछा जाए तो आप बता सकते हैं ना। अगर स्टेशनरी बॉडी का पूछा जाता है, इसको यहाँ पर हम मूव में इंडरलाइन कर सकते हैं, स्टॉप में कर सकते हैं, ये चेंज द स्पीड में कर सकते हैं, चेंज द डायरेक्शन द मेन रीज़न, एंड चेंज द शेप और साइज़। तो ऑल अंडरलाइन द मेन वर्ड्स, ओके। तो ये कलर लाइन से भी कर सकते हैं, कलर पेन से, मतलब कलर में से आप ब्लैक और ब्लू यूज़ कीजिए, और कोई कलर यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है हम आपको, ठीक है। प्रोजेक्ट में आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन रेड और ग्रीन आप नहीं यूज़ करेंगे प्रोजेक्ट में भी। रेड प्रोजेक्ट मतलब जो आप चार्ट पेपर बना रहे हैं उसमें हम बात करें। स्केच पेन्स आप यूज़ कर सकते हैं, रेड कलर का भी यूज़ कर सकते हैं, नीले पेन्स में आप रेड एंड ग्रीन नहीं यूज़ करेंगे। तो क्लियर चिल्ड्रेन, तो ये आपको समझ में आया। तो ये हमने एक एग्ज़ाम इस तरीके से बताया है, जिसके कारण इसके एग्जाम्पल्स भी लिख सकते हैं, सभी के एग्जाम्पल एक एक ना, सभी लोग लिख सकते हैं। अगर कैन चेंज द स्पीड का पूछा जाए उसका भी लिख सकते हैं, तो स्टेशनरी बॉडी का पूछा जाए उसका भी, तो हम इसको भी बता देते हैं आपको। जैसे एग्जाम्पल में बोले, अगर स्टेशनरी का है कि कोई बॉडी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है, आप कोई फुटबॉल के बाद से फुटबॉल प्लेयर कैन किक अ फुटबॉल केप्ट ऑन द ग्राउंड टू ब्रिंग इट मोशन में करने लगी, एंड कैन इट चेंज द स्पीड्स इज अगेन किकिंग, इट इज़ अ गोल, कैन स्टॉप द बॉल ऑफ एक्सर्टिंग द फोर्स। तो इसके एग्जाम्पल्स में हम और एग्जाम्पल लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये आप फोर्स के एग्जाम्पल में भी लिख सकते हैं, इज दैट क्लियर? फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट एग्जाम्पल देखना चाहें, फोर्स कैन फुटबॉल फोर्स के बारे में तुमने बता ही दिया है। अ फुटबॉल प्लेयर कैन किक अ फुटबॉल kept on the ground to bring it in motion, to
अ फुटबॉल प्लेयर कैन किक अ फुटबॉल केप्ट इन अ ग्राउंड में रखी हुई है और टू ब्रिंग इट मोशन, उसको मोशन में कर दिया उसने। कैन उसकी डायरेक्शन भी चेंज कर सकते, कैन चेंज इट्स स्पीड, इट्स स्पीड बाय अगेन kicking, speeds again kicking it. Goalkeeper can stop, ये सारी चीज़ें इसमें आ गई है। स्टॉप द बॉल, देखिए कोई बॉडी मूवमेंट में नहीं थी, उसको मूवमेंट भी करने लगे, उसकी डायरेक्शन भी चेंज कर दिया और उसको हमने स्टॉप भी कर दिया। फोर्स, देखिए सारी चीज़ें इसमें 3 पॉइंट्स आगे देखिए, मूव भी हुआ, स्टॉप भी, मूव हुआ, चेंज इन स्पीड भी हुई, डायरेक्शन में भी चेंज हुआ और स्टॉप भी होगी, चारों चीज़ें इसमें कवर हो जाती हैं। इज दैट क्लियर चिल्ड्रन? नाउ द अनदर एग्जाम्पल एक हम ले सकते हैं। रबर बॉल मेक्स अ बिलोंग ऑन अप्लाइंग, रबर बॉल, ठीक है, रबर लिख सकते हैं, या डायरेक्शन का भी एक और हम एग्जाम्पल लिख सकते हैं। फिलहाल अभी ये लिख देते हैं, फिर बताते हैं। ये पहले डायरेक्शन का लिख देते हैं। देखिए अ बैट्समैन, एक बैट्समैन है क्रिकेट में, अगर इन क्रिकेट देखिए इसमें डायरेक्शन वर्ड नहीं बोला था हमने। फुटबॉल केप्ट ऑन द ग्राउंड टू ब्रिंग इट्स मोशन, इट कैन चेंज द बाय अगेन टू किकिंग इट, स्पीड चेंज की, उसकी स्पीड चेंज किया, पहले दूसरी स्पीड से मारा, उसके बाद उसे हाई कर दी, लो कर दिया, जो भी किया, और एक गोलकीपर ने उसको स्टॉप कर दिया। और नेक्स्ट हमने एग्जाम्पल लिया, अ बैट्समैन इन क्रिकेट मैच कैन चेंज द direction of ball by applying force, ठीक है। A batsman or in cricket match can change the direction of the ball by applying force. Clear? The next example, a rubber ball becomes oblong on applying force, Is that clear children? इसको एक हम बनाना चाहें, एक छोटा सा एक डायग्राम भी बना सकते हैं। कोई रबड़ की बॉल लेकर देख सकते हैं आप, जैसे कि ये हैंड बना दिया हमने, बीच में बॉल रख दी हमने, इसको प्रेस किया गया, सेम एज हमने इधर से भी हैंड बना दिया, ये नेल्स है, और वी स्टार्ट फ्रॉम दैट साइड, Two and 3. ठीक, ये देखिए लग रहा है थोड़ा बहुत, अगर आप इससे भी अच्छा बना लें तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आपकी आर्ट अच्छी होगी, ऐसा नहीं कह सकते। देखिए बॉल लिया बीच में हमने और इसको प्रेस किया, ये हैंड लुक देना है मुझे, लुक चल रहे हैं, ये हैंड लुक, बॉल लिया, ये प्रेस करना है आपको, ये हैंड लुक देना, हमने प्रेस करा रबड़ की बॉल को, दैट इज़ द ये, तो दैट इज़ इट। ये यही तीनों एग्जांपल्स चाहें तो आप फोर्स में भी लिख सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है कि ये गलत होगा, ठीक है। नाउ चिल्ड्रन, अब आप लोग ध्यान रखिएगा कि जो भी हम टॉपिक पढ़ा रहे हैं उसको आप लोगों को साथ साथ हमारे नोट भी करते जाना है, जिससे क्या होगा कि आप लोगों को ये क्लियर भी होता जाएगा, ठीक है। जैसे आपका टाइम वेस्ट भी नहीं होगा और घर पे आप इसको लर्न भी कर सकते हैं इस चैप्टर को, इसी तरीके से। तो इसको कंप्लीट करने के बाद हम लोग आगे भी बढ़ेंगे। इज़ दैट क्लियर चिल्ड्रन? नाउ आई विल कंटिन्यू द नेक्स्ट क्लास द नेक्स्ट टर्न। ओके, थैंक यू क्लास, हैव अ नाइस डे।